Hello friends and welcome to Abhipedia. My name is Manish Mittal and in this video series we are discussing the multiple choice questions of public administration and development. So this is the fourth video in the series in which we are discussing different aspects of public administration and development, and this lecture series is especially helpful to those students who are preparing for the Employee State Insurance Corporation exam for the Deputy Director post. In that there is an area that is mentioned by UPSC, and that is public administration and development, and we are trying to touch different areas of public administration and development. Let's have a look at some of the questions that are related to public administration and development, and today in this class we are going to be specifically focusing on the legislative thing, some portions of the constitution that are related to public administration. So the first question is the question asked orally after the question hour in the house. So in any house, once the question hour is complete, the question asked orally is known as number 1 supplementary question, B short notice question, C starred question, or D unstarred question. So which of these is the correct answer? Basically, a supplementary question is a question which is as a supplement to the actual question. So say if I ask you a question, you answer it to me. You means minister. You answer it to me. Then I ask a supplementary question based on your answer. That is a supplementary question. So supplementary question is not the answer. Then short notice question is that question for which a short notice is given. So again, not relevant here. Now starred and unstarred question. Starred questions are those whose answers are given orally. So C is your correct answer. Unstarred question on the other hand is that whose answer is given in writing, in a written form. Sometimes the facts may be too complicated and sophisticated that an oral answer is not feasible. That's why there are unstarred questions as well. So the answer is C, starred questions. So starred questions are those whose answers are given orally. Question number 2, the economy cut motion. Economy cut motion seeks to reduce the proposed expenditure of a demand for grant by what? Whenever a budget is introduced in a house, there are different cut motions applied on it to reduce the grant that is being sanctioned for a particular head. So if an economy cut motion is introduced, what does it seek? Does it reduce the grant by 100 rupees or by 1 rupee or by a specified amount or by an unspecified amount? There are different cut motions for all of these. Basically economy cut as a name itself is suggestive. Economy cut का मतलब होता है कि आपको किसी ग्रांट को इकोनॉमिकल बनाना है. तो अगर ऑपोजिशन मेंबर्स को ये लग रहा है कि अंडर अ पर्टिकुलर हेड बहुत ही ज़्यादा जो ग्रांट है वो मांग ली गई है, तो उसके लिए इकोनॉमी कट मोशन इशू किया जाता है ताकि एक स्पेसिफाइड अमाउंट कम की जा सके. सो टू रिड्यूस अ स्पेसिफाइड अमाउंट द इकोनॉमी कट मोशन इज इशूड. टोकन कट मोशन होता है जिसमें 1 रुपी या फिर 100 रुपीज़ कम किए जाते हैं. इट्स जस्ट सिम्बॉलिक इन नेचर. बट इकोनॉमी कट इज जिसमें कि ये जो ग्रांट है वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट से कम की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी हेड में 100 करोड़ रुपए मांगे गए हैं तो इकोनॉमी कट मोशन इंट्रोड्यूस करके ऐसा कहा जा सकता है कि इसे 100 करोड़ से कम करके 70 करोड़ किया जाए, फॉर एग्जाम्पल, टू मेंटेन इकोनॉमी इन द बजट मेकिंग. तो इसे कहा जाता है इकोनॉमी कट मोशन. क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कमीशन दैट वर्क फ्रॉम 1981 टिल 1984. तो ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कमीशन जो बनाई गई थी इंडिया में इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए, उसके चेयरपर्सन कौन थे? ए धर्मवीर, बी एल के झा, सी के हनुमंथैया, और डी बी जी देशमुख. ये क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा. डायरेक्टली एल के झा इज द करेक्ट आंसर. एल के झा वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन. Question number 4, in which year was the decision of separating accounting function from the audit function taken by the central government for its financial administration? देखिए जो C&AG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो पहले 2 फंक्शंस परफॉर्म करता था, कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स एज वेल and
ऑडिट फंक्शन एज वेल. दोनों फंक्शंस जो थे दे वर परफॉर्म्ड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. बट in the year 1976 these functions were separated. Now the controller and auditor general only does the audit function, और जो accountancy का function है वो अलग से principal accountant general होता है. So in which year was accounting separated from auditing? It was the year 1976. So now जो CAG होता है वो सिर्फ auditing का काम देखता है. Question number 5. In which recruitment, so now this is something related to personnel administration, which is of course a part of public administration and development. In which recruitment in a system for higher position is open to all the qualified candidates who may wish to apply is known as. ऐसी recruitment type जिसमें एक post जो है, ये एक particular designation सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए ओपन कर दी जाती है जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्वालिफाइड हैं और वो ओपन कंपटीशन में आ सकते हैं. तो उसे हम क्या कहते हैं? ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, बी रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन, सी ऑर्डिनरी रिक्रूटमेंट और डी पैसिव रिक्रूटमेंट. बड़ा सिंपल आंसर है इसका, ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. तो डायरेक्टली अगर आप रिक्रूट हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल द सिविल सर्विसेज एग्जाम इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट. ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई कैन अप्लाई. दैट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. Question number 6. Position classification is the classification of what? So in personnel administration there are different types of classifications. There is position classification, there is rank classification. तो position classification में किस चीज़ की classification की जाती है? Is it the classification on the basis of salaries, on the basis of duties, on the basis of departments or on the basis of personal status of the incumbents? देखिए पर्सनल स्टेटस ऑफ द इनकम्बेंट तो किसी भी सिनेरियो में रेलिवेंट नहीं है, इस बेस पे कभी भी क्लासिफिकेशन नहीं होती है. सो दिस इज टोटली आउट ऑफ द इक्वेशन. बाकी तीनों बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है. जो डिपार्टमेंटल बेस पे क्लासिफिकेशन होती है दैट इज डिपार्टमेंटल क्लासिफिकेशन. सो अगेन नॉट द आंसर. सैलरीज के बेस पे जो क्लासिफिकेशन होती है दैट इज रैंक क्लासिफिकेशन. सो अगेन नॉट द आंसर. इट इज व्हेन ड्यूटीज आर क्लासिफाइड दैट दिस पर्सन हैज दिस ड्यूटी, this responsibility, that is known as position classification. So B, duties is your correct answer. Question number 7. A new all India service can be created by what? जो सिविल सर्विसेज हैं उसमें बेसिकली 3 तरह की सर्विसेज आती हैं. एक होती हैं आपकी सेंट्रल सर्विसेज, एक होती हैं स्टेट सर्विसेज और एक होती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज. इनमें जो मेजर क्राइटेरिया रहता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सर्विस. तो जो सेंट्रल सर्विसेज होती हैं इन्हें रिक्रूट भी सेंटर करता है और ये सर्व भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ही करते हैं. जैसे कि इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस जो है इसे रिक्रूट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है यूपीएससी के थ्रू और ये सर्व भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करते हैं बिकॉज फॉरेन डिपार्टमेंट तो जो है वो स्टेट्स में होता ही नहीं है. सेकेंड इज योर स्टेट सर्विस. स्टेट सर्विस को रिक्रूट स्टेट करती है थ्रू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड दे ऑल्सो सर्व इन द स्टेट. सो देर इज नो प्रॉब्लम एज फार एज दीज टू सर्विसेज आर कंसर्न. जो इन्हें रिक्रूट कर रहा है वहीं पे ये सर्व कर रहे हैं. बट व्हेन इट कम्स टू ऑल इंडिया सर्विस दे आर रिक्रूटेड बाय द सेंटर by UPSC but they serve in the states. अब ऐसा स्ट्रक्चर क्यों रखा गया है? ऑल इंडिया सर्विस में कुल 3 सर्विसेज आती हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. देयर F स्टैंड्स फॉर फॉरेस्ट नॉट फॉरेन, फॉरेस्ट. तो ये 3 ही सर्विसेज हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, यानी कि इनकी रिक्रूटमेंट यूपीएससी करती है लेकिन ये जाके सर्व करते हैं स्टेट्स को. Now what is the reason for such thing? ये ऑफिसर स्टेट्स ही रिक्रूट क्यों नहीं कर लेती? Because to give uniformity to central policies, to have a uniform talent pool throughout India and to give integration to India at a better level. All India services जो है वो क्रिएट की गई थी ताकि इन्हें जो सिलेक्शन है वो इनका ऑल इंडिया टैलेंट पूल के बेसिस पे हो और वहाँ से ये किसी भी स्टेट को सर्व करने के लिए जा सके. तो दैट इज़ द पर्पस. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी हो तो उसका प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड, एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर.
Third, a resolution under Article 312 of the Constitution, और D, a statute. देखिए, जब भी आप कोई नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करेंगे तो उससे स्टेट्स को प्रॉब्लम होगी. क्यों? क्योंकि एक और ऐसी सर्विस बन रही है जिसको रिक्रूट सेंटर करेगी, लेकिन वो जाके सर्व स्टेट्स में करेंगे. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ गिविंग अप ऑफ द पावर्स ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स द सेंटर. तो ऐसा कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा तो वो स्टेट्स की कंसेंट से लिया जाना चाहिए, और स्टेट्स की कंसेंट आती है आर्टिकल 312 से. बिकॉज अंडर आर्टिकल 312, इफ द राज्यसभा passes a resolution, only then an ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड. राज्यसभा में सभी की सभी स्टेट्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेड होती हैं. So if the Rajya Sabha passes a resolution by 2/3 majority, only then a new all India service can be created. So C is your correct answer. If a resolution under Article 312 of the Constitution is passed by the Rajya Sabha, a new all India service can be created. Next, question number 8. Promotion in civil services indicates what? Such changes in the situation which indicate difficult work and more important responsibility. Okay, change in the place of work, transfer of work from field to headquarters, or always an increase in pay. देखिए, always an increase in pay ज़रूरी नहीं है. प्रमोशन में ज़रूरी नहीं है कि पे हमेशा इंक्रीज हो. कभी कभी हो सकता है कि सिर्फ रैंक इंक्रीज हो रहा है बट सैलरी डज नॉट इंक्रीज. सो ये ऑप्शन गलत है. सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ वर्क फ्रॉम फील्ड टू हेडक्वार्टर, ये भी ज़रूरी नहीं है. हो सकता है सेम रैंक पे सेम सैलरी पे आपको फील्ड से हेडक्वार्टर में शिफ्ट कर दिया जाए. अगेन नॉट करेक्ट. चेंज इन द प्लेस ऑफ वर्क, इसे प्रमोशन नहीं ट्रांसफर कहा जाता है. सो दिस अगेन इज इनकरेक्ट. प्रमोशन मीन्स डिफिकल्ट वर्क एंड मोर इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. जहाँ पे ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा डिफिकल्ट या ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, दैट इज व्हाट प्रमोशन इज इंडिकेटिंग. So A is your correct answer. Very simple question it was. अगर आपको इसकी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है तो भी एक जनरल कॉमन सेंस से सॉल्व होने वाला ये क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following reports deals with the relations between specialists and generalists? जो जनरलिस्ट होते हैं वो ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें किसी एक डोमेन की या स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज नहीं होती. दे कैन हैंडल एनीथिंग जनरली. जबकि जो स्पेशलिस्ट्स होते हैं दे आर डोमेन स्पेशलिस्ट्स, राइट, लाइक IT, पॉलिसी मेकिंग, देन यू हैव हेल्थ, एजुकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स. तो कौन सी रिपोर्ट है जिसने स्पेशलिस्ट्स और जनरलिस्ट्स के बीच के रिलेशन को डिफाइन करने की कोशिश की थी? ऑप्शंस आर A, हल्दने कमेटी रिपोर्ट, B, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट, C, फुलटन कमेटी रिपोर्ट, और D, कोठारी कमेटी रिपोर्ट. बड़ा इंपॉर्टेंट है ये और काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है. The answer here is C, Fulton Committee report. So Fulton Committee report is the correct answer here. And finally, our last question. Reservation for the scheduled castes and scheduled tribes in the services. तो जनरली ये सारे क्वेश्चन जो थे आपके लेजिस्लेचर से रिलेटेड और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे, विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट. रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs इन द सर्विसेज हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल? किस आर्टिकल में SCs और STs को सर्विसेज में रिजर्वेशन दी गई है? A, आर्टिकल 315, B, आर्टिकल 335, C, आर्टिकल 365 एंड D, आर्टिकल 375. अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जनरल सी नॉलेज है तो ये दोनों आर्टिकल्स तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं. दीज टू आर्टिकल्स आर रिलेटेड विद द इमरजेंसी एंड आफ्टर दैट. तो बचे आपके आर्टिकल 315 एंड 335. योर करेक्ट आंसर इज बी, आर्टिकल 335. अगेन थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर की नॉलेज है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं. Right, so these were your important MCQs on the basis of public administration and development. I hope your preparation is going fine, and please, if you are watching this video for the first time, hit the bell icon, subscribe to the channel so that you receive the notifications of all these videos as and when we post them. And also do not forget to watch the other videos of public administration and development and other subjects which are relevant for your exam. That is all for this video. Thank you so much and all the best.